تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی، میں رحیم یار خان سے بول رہا ہوں، میرا نام معین الدین ہے۔ آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کو سن کے یوٹیوب پہ۔ بھائی یہ ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں اہل تشیع حضرات، اور وہ چیلنج کر کے یہ ویڈیو بھیج رہے ہیں بار بار کہ اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اور مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ یہ ویڈیو اس لیے آپ کو بھیجی ہے، اگر ہو سکے تو اس کے بارے میں پلیز کوئی رہنمائی فرمائیں ہماری، تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ان تمام دوستوں کا شکریہ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ چیلنج کیا ہے۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا نا، مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا، مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے، اس آیت کا مجھے جواب دے جائے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے۔ پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا، پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن، اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ایک شیعہ ذاکر ہے جو تمام کو چیلنج بھی کر رہا ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ ہی جنتی ہیں اور جتنے گروہ ہیں دوسرے وہ سارے جہنمی ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 159 سے یہ دلیل بھی لے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لننزعن من کل شیعہ۔ یہ لفظ شیعہ سے دلیل لے رہا ہے کہ شیعی جنتی ہوں گے، باقی سب کو نکال دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پہلی بات علمی ہوگی، اس کے بعد اسی ذاکر کو الزامی جواب دی جائیں گے۔ علمی بات یہ کہ شیعہ لفظ عربی کا ہے اور اس کا معنی ہے گروہ ہے۔ قرآن پاک میں 9 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، گروہ کے معنی میں آیا ہے۔ یہ جماعت جو آج کل شیعہ کے نام سے منسوب ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ صافات آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم، کہ ان کے گروہ میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کا جو گروہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اسی گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر یہ معنی شیعہ کا لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعوں کے گروہ میں سے تھے، جو آج کل کے شیعہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کا گروہ کون سا تھا؟ نوح علیہ السلام کا گروہ تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ تو یہاں شیعہ معنی گروہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہجر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی
तमाम ग्रोहों में अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे। शिया यानी ग्रोह, अव्वलिन पहले जो ग्रोह जितने गुजरे हैं उनमें से हमने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे हैं डराने के लिए। तो क्या यहाँ ये माना लिया जाएगा कि महबूब हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम थे शियों में भेजे ताकि शियों को जाके तबलीग करें? अगर ये माना लिया जाए तो इससे मुराद पहले शी जितने थे वो काफिर थे और काफिरों की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए ताकि उनकी इस्लाह करें। ऐसी बात नहीं है। शिया का माना क्या है? ग्रोह है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह रूम में अल्लाह फरमाता है मिनल्लज़ीन फर्रकू दीनहुम वकानु शिया, वो लोग जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वकानु शिया, वो शिया हो गए यानी ग्रोह हो गए, ग्रोह दर ग्रोह हो गए। या ये मुराद नहीं कि जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े किया वो शिया हो गए, शिया से मुराद ग्रोह हो गए। अब हम आते हैं इसके इल्जामी जवाब पर। ये कहता है कि सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिया, कि हमने शियों के अलावा तमाम को जन्नत से निकाल देना है। असल अगर आप तर्जुमा देख लें आपको हैरानी होगी कि कितनी जहालत मौसूफ की। माना क्या है आपके सामने है, सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिया अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान अतिया, फिर हम हर ग्रोह से ऐसे शख्स को जरूर चुनकर निकाल लेंगे जो उनमें से खुदाए रहमान पर सबसे ज्यादा नाफरमान और सरकश होगा। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीन हुम औला बिहा सिलिया, फिर हम उनको खूब जानते हैं जो दोज़ख में झोंके जाने के ज्यादा सजावार हैं। इस आयत में ये फरमाया गया कि जो नाफरमान है उनको तमाम गुरोह से निकाल के जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा। ये असल माना है। और ये जो माना लेते हैं कि शियों के अलावा सारों को जहन्नम में डाला जाएगा, माना नहीं बनता, बल्कि माना ये बनता है, अगर इनका माना ये बनता है कि तमाम शियों में से मिन कुल्ले शिया, जितने भी शिये हैं उन शियों के ग्रोहों में से हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे। यहाँ सुन्नी वहाबी की बात नहीं, बात ये हो रही है अगर इनका माना लिया जाए सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिया, फिर माना ये बनेगा कि शियों के जितने ग्रोह हैं उनमें से जो बंदा भी खुदा का नाफरमान होगा उसको हम जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ये फरमा रहा है। बल्कि ये आयत इनके गले में फिट हो रही है कि शियों के जितने ग्रोह हैं उन सब को हम जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ये फरमा रहा है। इनका माना लिया जाए तो इसका माना ये बनता है कि शियों के जितने ग्रोह हैं उनमें से जितने लोग नाफरमान हैं उनको हम जहन्नम में डालेंगे। मिन कुल्ल शिया, शियों के जितने ग्रोह हैं, औरों की बात नहीं हो रही। यह इल्जामी जवाब ये कि शियों के ग्रोह में से अल्लाह फरमाता है, इनके माना के लिहाज से अल्लाह फरमाता है इन शियों के तमाम ग्रोहों में से हम इनको जहन्नम में डालेंगे। शियों के ग्रोहों से। अब आगे देखिए, अगर इन्हीं का मान लिया जाए कि शिया जन्नत में जाएंगे, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कसस आयत नंबर 4 में फिरौन का जिक्र किया है। इन्न फिरऔन अला फिल अर्द वजअल अहला शिया, बेशक फिरौन ने तकब्बुर किया जमीन में, वजअल अहला शिया, और अपने बाशिंदों को उसने शिया बना दिया। इनका माना लिया जाए तो यही बनता है कि फिरौन ने जमीन में तकब्बुर किया और अपने बाशिंदों को उसने शिया बना दिया। इनका माना लिया जाए तो ये साबित हो जाएगा कि शिया की इब्तदा फिरौन ने की। यह है दूसरा इल्जामी जवाब। हमारी तो वही तहकीक है कि शिया का माना ग्रोह है। फिरौन ने 2 ग्रोह बना, एक बनी इसराइल एक किब्ती। लेकिन ये जो शिया का माना लेके दूसरों पर भड़के मार रहे हैं तो इन्हीं के माना के लिहाज से बनेगा कि शियों की इब्तदा फिरौन ने की और अपने बाशिंदों को उसने शिया बनाया। फिरौन ने अपने बाशिंदों को शिया बनाया। सूरह कसस आयत नंबर 4। अब आगे देखिए मौसूफ कितना झूठ बोल रहे हैं। 72 जहन्नमी, एक फिरका जनती। हम पूछना वो जनती कौन है? रख चल, हाँ दोनों शिया सुनी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। क्या कि अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह आप बताएं, आपकी हदीस क्या मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जनती। या रसूलल्लाह उस जनती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? लो, जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में मुझे अपनी किसी फटी हुई हदीस किताब से ही अपना नाम भी नबी की जुबान से साबित करे, अपने और अपने फिरके का नाम भी नबी की जुबान से साबित करे। मैं मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ में बैत भी करूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। नहीं तो कितनी किताबें हैं? 100। और बोल हाँ 100। तो हाँ तुम बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं करना। जिसको मनाजे का शौक है मेरा बिल्कुल लिहाज ना करे। कागज कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके मुसन्निफों के नाम भी लिख ले, उनके मदबों के नाम भी लिख ले। समझ आ रही है ना? लिखो मेरे भाइयों की पहली किताब है
तफसीर इब्न जरीर मोहम्मद बिन जरीर तबरी 307 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख 560 किताबों के मुसन्नफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फथुल कदीर मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फथुल बयान नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है सफाई के मोहर का मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री मुफ्ती साले कश्मी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जुनाबियल मवद्दत काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया मुल्ला अबू नईम इस्फहानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है मवद्दत फिल कुर्बा सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फराइदुस समतैन अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है रजाबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ बुला के सरेआम फांसी में लटकाओ। लिखो रावियों के नाम अन जाबिर बिन अब्दुल्ला अन इब्न अब्बास अन अबी सईद खुदरी अन उम्मे सलमा अन अबी दर गफारी अन सलेमान फारसी अन मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फकबाल अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन हाज़ा वशियतहु हुमुल फाइजून यौमल क़ियामा या अली अंत वशियतुका फिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने होते हैं जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली है देख कर आ रहा है मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है मतलब उनका शिया होगा इमाम उनका हैदर कर्रार। दोस्तों आपने सुना 114 हवाले में दूंगा और उसने पढ़ के बताए कि शिया ही हजरत अली रदी अल्लाह तआला के पीछे होंगे, हजरत अली रदी अल्लाह तआला जन्नत में होंगे। तो शिये जो हैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाले वो भी जन्नत में जाएंगे। 114 इसने हवाले देने की कोशिश की और 14 हवाले दिए। और 14 हवाला कौन सा दिया? अन नजाबा, ये डॉक्टर ताल कादरी साहब की किताब है, अन नजाबा फी मनाकिब सहाबा वल कराबा, इसका हवाला दिया। और इसके अलावा जितने दूसरे हवाले दिए वो अरबी के हवाले दिए। अरबी किताबें उठा के देखें आपको ये हदीस नहीं मिलेगी। आप इसी किताब को उठा के देखें। जिस भाई के पास ये किताब नहीं है मुझे इस नंबर पर किताब की डिमांड करे, मैं उसको किताब दूंगा। 207 सफ़े से लेकर 272 सफ़े तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल हैं। मैंने इसको 5 मरतबा पढ़ा है, मुझे ये हदीस नहीं मिली। और मकतबा शामला में मेरे पास 5558 किताबें, तमाम मैंने रिसर्च किए, किसी एक किताब में, ये तो 114 के हवाले कह रहा है, 5558 किताबों में से किसी एक किताब में ये हदीस नहीं है। कितना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी मक्कारी कि हम हक पर हैं और हम आपको हदीसें सुनाते हैं। असल हदीस क्या है? वो ये है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। एक मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नम में होंगे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक मिल्लत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। क्योंकि शिया तो सहाबा को मानते नहीं सिवाय चंद के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वो ग्रोह जन्नत में जाएगा। और यही ग्रोह अहले सुन्नत है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है और सहाबा से मोहब्बत करता है। कुछ ग्रोह ऐसे हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाए तो उनके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, अहले सुन्नत नहीं खुश होते हैं। कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तक नहीं लेते।
आले सुन्नत तमाम का नाम लेते हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला के इमाम मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन नऊज़ बिल्लाह दूसरों की गुस्ताखियां करते हैं। अहले सुन्नत ऐसा नहीं करते, तमाम साहबा को मानते हैं, तमाम साहबा से मोहब्बत करते हैं। कुछ गुरु ऐसे जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं, बाकियों से नऊज़ बिल्लाह नफरत करते हैं। अहले सुन्नत ऐसा नहीं, तमाम सहाबा सहाबियात का अदब एहतराम, ये अहले सुन्नत है। औलिया कराम साहबा कराम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले ये है अहले सुन्नत। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो लोग होंगे जन्नती। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2641 हदीस आप देख रहे हैं। और इसने झूठी हदीस पेश की। मैं आपको किताब सेंड करूंगा, आप देखें। और वो किताबों के नाम जो उसने दिए डॉक्टर ताहिर कादिर साहब की किताब के, जिस भाई को तहकीक करनी है वो मुझसे मंगवा ले वो किताब। और कहा मुझे जहां चाहे फांसी पे लगवा दे, मुझे ये कर दे, मैं वो कर दे। कितना बड़ा झूठ है, कितनी बड़ी मकारी है। जो चैलेंज कर रहा है उसके पास वो हदीस है ही नहीं, न उसने हदीस का नंबर बताया, और जिन किताबों के नाम बताया उस किताब में वो हदीस ही नहीं है। और असल हदीस ये है तिरमिज़ी शरीफ में, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो मेरे भाई ने जो सवाल किया उसको जवाब इंशाल्लाह मिल गया कि पहला भी उसने झूठ बोला है। कुरान पाक से दलील ले रहा है कि सुम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्लि शिया, के तमाम को शियों से निकाला जाएगा। बल्कि उसका माना इल्जामी है कि शियों के जो ग्रोह हैं उनमें से उठा उठा के नाफरमानों को जहन्नम में डाला जाएगा। शियों के मिन कुल्लि शिया, शियों के तमाम ग्रोहों को उठा के जहन्नम में डाला जाएगा। इल्जामी जवाब यही है। और तहकीकी जवाब ये है कि शिया का माना है ग्रोह, और जितने ग्रोह होंगे उनमें जितने लोग नाफरमान होंगे उनको उठा के जहन्नम में डाला जाएगा। लेकिन इल्जामी जवाब यही है, इसी का जो चैलेंज कर रहा है कि शियों से उठा उठा के जहन्नम में डाले जाएंगे। और शियों की इब्तिदा फिरौन ने की, इन्न फिरौन अला फिल अर्द वजअल अहला शिया, सूरह कसस आयत नंबर 4, कि फिरौन ने शिया बनाए। शिया की इब्तिदा फिरौन ने की। और ये जो हदीस पेश कर रहा है ये हदीस है ही नहीं किताब में। अन नजाबा वल कराबा, ये किताब का नाम भी ले रहा है आखिर में। ये किताब मंगवाइए और पढ़िए, सफा नंबर 207 से लेकर 272 तक आपको ये हदीस तक नहीं मिलेगी। इतने बड़े झूठे और मक्कार हैं। अब ये चैलेंज कर रहे फिर रहे, आए इन चीजों का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।